कि पूरी दुनिया की जो लार्जेस्ट सीरीज है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की अडल्ट पेशेंट्स की, वो हमने ही रिपोर्ट करी थी। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास था। तो हम पैंक्रेटाइटिस का होने का कारण अडल्ट पेशेंट्स में, जैसे मैंने बताया, अल्कोहल का सेवन और स्मोकिंग। सारे हॉस्पिटल्स में गया और क्योंकि ये छोटा था, इसका वजन बहुत कम था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो जब ये बच्चा हमारे पास आया तो हमने सोचा कि हम इस बच्चे की मदद करें। सच अ कंडीशन टू अंडरगो सक्सेसफुल सर्जरी एट CK Birla Hospital, Punjabi Bagh. I'm the Chief Business Officer of CK Birla Hospital. Very warm welcome to all of you and thank you so much for your presence here. We are all here to share with you the success of a very complex surgery we did at the hospital. And this is also a very important milestone for us as a hospital because we stand for clinical excellence and high quality of clinical care. Surgery, this is a big milestone for the hospital, right? This is a surgery on chronic pancreatitis, and this is a very rare surgery in the sense that this surgery being done in India and worldwide laparoscopically, that too on a young patient, is rarely reported, and Dr. Javed will speak more about that element. Let me introduce the panel. We have Mr. Akshat Seth. He is the CEO of CK Birla Healthcare. Akshat joined the CK Birla Group back in 2014 as the head of growth and strategy for the group. He was involved in designing the strategy, doing mergers and acquisitions and developing new businesses in the group. Back in 2016, he led as the CEO of CK Birla Healthcare, he led the growth and from an idea stage to the reality of two big brands. One is the CK Birla Hospital and second is Birla Fertility and IVF. I will have Akshat speak about the brand and the hospital first, and then I will go to the case details where Dr. Amit Javed will speak about it. Welcome to all of you, and thank you for being part of an important milestone. Can you hear me? Thank you for being part of an important milestone for us as a hospital. I think we pride ourselves on great quality clinical care, and cases such as this add to our confidence in driving many such cases in future as well. A quick introduction, and somewhere Vipul talked about the CK Birla Hospital brand. We are of course part of the CK Birla Group, which is a 150-year-old diversified conglomerate present in multiple industry segments in India and outside India. The group has been at the forefront of serving India's healthcare needs for almost 50 years with our hospitals in Calcutta, it's the CMRI and BM Birla Heart Institute, and our hospitals in Jaipur, Rukmani Birla Hospital. We also, as Vipul said, have a brand of fertility clinics by the name of Birla Fertility and IVF. This particular venture, CK Birla Hospitals, was formed 5 years ago with the start of our first hospital in Gurgaon. It's a chain of world-class multi-speciality institutions focused on the healthcare needs of the family, delivered with warmth, responsiveness and sensitivity. As I said, the first hospital under this brand is a NABH accredited facility in Gurgaon, operational since 2017, and in these years has served more than 1 lakh families very successfully. This, our second hospital, started last year and is already doing exemplary work, one of which we will be talking in more detail today. And overall the plan is to grow this brand of hospitals further in Delhi NCR and in other locations across the country. With these hospitals, our vision is to transform the future of healthcare through outstanding clinical outcomes, research, education and compassionate care.
We deliver, and that's our promise to every patient who comes in, global standards of clinical quality and service excellence with the highest standards of integrity, something that you would expect from a Birla Group entity. The center at Delhi, the one where all of us are sitting today, is delivering on these counts first and foremost by an exceptional team of clinicians. Clinicians such as Dr. Javed, who are leading their departments and doing exceptional work with the patients that are coming in. They are complemented very ably by our team of nursing and our other support services. We adhere to international and national guidelines and protocols, and that's again one of our USPs. And finally, what we take great pride is in the patient satisfaction scores. Our patients consistently rate us at more than 95% satisfaction level, and which is something that we feel extremely good about. Sciences and oncology, orthopedics, mother and child, family health and critical care. With that, let me hand it back to Vipul. But once again, my gratitude to all of you for joining us in sharing and celebrating this important milestone. Thank you so much. Amit Javed. Dr. Javed is one of the leading GI surgeons in Delhi NCR. He has over 20 years of experience and he does exceptionally complex surgeries in the field of gastro and hepatobiliary surgeries, obesity and GI oncology as well. He is an MCH from All India Institute of Medical Sciences, has been working at University of California in San Francisco as associate professor, and almost does over 1,000 surgeries every year in this area. He was also the first surgeon in India to do a pancreatic surgery on a 6-month-old pregnant lady, Vipul's surgery on a 6-month-old pregnant woman. And today this surgery again is one of the rarest in the world. I think for a child of 7 years of age, I think hardly any have been reported around the world, and probably the first in India. I will have Dr. Amit speak about the surgery and also the outcomes for the patient. Please. तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं कॉम्बिनेशन हिंदी इंग्लिश में आपसे बात करूँगा. तो हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रेयर केस के बारे में हम बात करेंगे, और जो हमने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी एक लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से करी है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो ये जो बच्चा है, ये एक 7 साल का बच्चा है जिसको जो बीमारी है उसको हम क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, और साथ में क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के साथ इसको बाइल डक्ट के अंदर भी रुकावट थी जिसको हम बाइल डक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं. अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि ये क्या चीज़ क्या है, फॉर अ ले पर्सन रीढ़ पैंक्रेटाइटिस बीमारी क्या है, तो अगर हम अपना पेट देखें, अगर आप फोटो भी देखेंगे सामने, तो पेट में सबसे ऊपर रीढ़ की हड्डी पे स्पाइन के साथ लगा हुआ ये ऑर्गन होता है, इसको हम कहते हैं पैंक्रियास. जो पैंक्रियास हमारी बॉडी में ऑर्गन है, इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं. नंबर 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन. तो ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, जो हम खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में, उनको पाचन करने में हेल्प करता है. दूसरा पैंक्रियास का जो काम होता है वो इंसुलिन बनाता है. तो हम जो हमारी इंसुलिन, हम सबको पता है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है. तो पैंक्रियास के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इंसुलिन बनाना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, और डाइजेशन में हेल्प करना. अब ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस क्या बीमारी है? तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का मतलब है कि पैंक्रियास के अंदर सूजन हो रही है, पैंक्रियास के अंदर स्वेलिंग हो रही है, और जो पैंक्रियास की जो नली है, जो पैंक्रियास की डक्ट है, उसके अंदर जगह जगह पर रुकावट आनी शुरू हो जाती है, और पैंक्रियास की नली के अंदर स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं. इतनी ज़्यादा कई बार सूजन होती है कि आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, कभी कभी स्टमक नैरो हो जाता है, कभी कभी बाइल डक्ट की नली नैरो हो जाती है. तो इसके क्या कारण है, किस वजह से किसी इंसान को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है?
तो जो अडल्ट पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है वो अल्कोहल और स्मोकिंग है। बट एक छोटे बच्चे के अंदर तो अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं है। तो बच्चों के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का वो जेनेटिक है। उनकी जीन्स में कुछ ऐसी म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से वो प्रीडिस्पोज्ड हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस से सफ़र करने के लिए। अब अगर एक बच्चे को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो जाए तो उसको क्या सिम्टम्स होंगे? जैसे कि इस बच्चे को सिवियर पेन, पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करता है, और इतना सीवियर पेन होता है कि आप जो नॉर्मल हम दवाइयाँ खाते हैं उनसे आराम नहीं पड़ता है, तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। पेन के साथ साथ कभी कभी बाइल डक्ट के अंदर रुकावट हो जाती है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाती है, तो कभी कभी कुछ बच्चों में डायबिटीज़ तक हो जाती है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। और क्योंकि इन बच्चों को इतना तेज़ दर्द होता है, ये बच्चे अपना नॉर्मल खाना पीना नहीं खा पाते हैं, उसकी वजह से ये मैल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं, मैल नरिश्ड हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अब हम अपने इस प्यारे से बच्चे के बारे में बात करते हैं। ये 7 साल का बच्चा है और इसको पिछले 3 साल से सिवियर पेन होता था, अपर एब्डोमेन में पेन होता था, और इतना पेन होता था कि ही वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल्स रिपीटेडली, और हॉस्पिटल्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस इंक्लूडिंग मॉर्फिन, इतने स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन इस बच्चे को लगवाने पड़ते थे अपने पेन को रिलीव करने के लिए, और इसके बाद भी इतने अच्छे से पेन रिलीव नहीं होता था। क्योंकि इसको इतना दर्द होता था, ये अपना खाना ठीक से नहीं खा पाता था, ये कमज़ोर होता जा रहा था, इसका वज़न भी कम था, इसका वज़न सिर्फ 17 किलोज़। उसके बाद क्योंकि सूजन इसकी बढ़ती गई, इसकी पित्त की नली में रुकावट हो गई, इसको जॉन्डिस भी हो गया। एक दूसरे हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी से जॉन्डिस को कम करने के लिए एक स्टेंट डाल दिया। तो अब इस बच्चे का क्या इलाज था? इस बच्चे को सिवियर पेन हो रहा था, मॉर्फिन के इंजेक्शन लग रहे थे, जॉन्डिस हो गया था, कमज़ोर हो रहा था, तो इसके लिए सिर्फ एक ही इलाज था, वो सर्जरी थी। तो इसकी सर्जरी होना बहुत ज़रूरी था। बट ये दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गया, और क्योंकि ये छोटा है, कमज़ोर है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी ओपन सर्जरी भी नहीं हो सकती है। तो फिर थका हार के, परेशान होके ये हमारे पास सीके बिरला हॉस्पिटल के अंदर आया। जब हमने इस बच्चे को देखा तो हमने कहा कि हम इसकी मदद ज़रूर करेंगे, और हम नॉर्मल जो कन्वेंशनल ऑपरेशन होता है, पूरा पेट काट के, हम इस छोटे से बच्चे का पूरा पेट क्यों काट दें, इसको इतना तकलीफ, इतना दर्द क्यों दें, और एक जिंदगी भर का एक स्कार इसको क्यों दे, जो आप बड़ा होके भी ये देखता रहे कि मेरे का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतनी तकलीफ हुई। तो हमने सोचा कि इस ऑपरेशन को हम लैप्रोस्कोपिक की होल मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से करें। तो इस सोच के बीच में हमारा क्या पर्पस था, हम क्या अचीव करना चाहते थे? हम ये अचीव करना चाहते थे कि इस बच्चे की रिकवरी फास्ट हो, इस बच्चे को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन ना हो, जिस तकलीफ से बच्चा सफ़र कर रहा था वो तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो जाए, और पेट पे कोई गंदा निशान इसके ना आए। बट इस थॉट के साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस भी थे। तो हमारे मन में थोड़ा सा ये था कि ये बीमारी, आज तक दुनिया में इस बीमारी को लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से बहुत छोटे बच्चे में हम जो नॉर्मल अडल्ट साइज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे डालेंगे? पेट में जगह ही नहीं है, वो इतना छोटा है, तो इतने बड़े ऑपरेशन को इतनी स्मॉल टेक्निक से हम कैसे अंजाम देंगे? तीसरी चीज़, क्योंकि ये बच्चा ठीक से खाना पीना नहीं खा पा रहा था, इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर था, तो हम उसको कैसे, क्या वो इस ऑपरेशन को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा? तीसरी, साथ में क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के साथ इसके बाइल डक्ट में भी रुकावट थी, हमें उसका भी इलाज करना था। तो ये कुछ चैलेंजेस हमारे सामने थे। अगर हम दुनिया में इस ऑपरेशन के बारे में बात करें तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की सर्जरी अपने आप में चैलेंजिंग है, नंबर 1। इवन अडल्ट पेशेंट्स में चैलेंजिंग होती है, और इवन ओपन टेक्निक से अगर हम पूरा पेट काट के भी ऑपरेशन करते हैं तो वो भी इंडिया में बहुत गिने चुने सेंटर्स में ही इस चीज़ का ऑपरेशन होता है। लैप्रोस्कोपी फॉर क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस तो बहुत इक्के दुक्के इंस्टीट्यूट्स पूरे इंडिया में अडल्ट पेशेंट्स में वो भी करते हैं, और हमने अडल्ट पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि हमें क्यों कॉन्फिडेंस था कि हम, क्योंकि पूरी दुनिया में नहीं हुआ, हमें क्या ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हम इस बच्चे की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं? वो कॉन्फिडेंस इसलिए था कि पूरी दुनिया की जो लार्जेस्ट सीरीज है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की अडल्ट पेशेंट्स की,
वो हमने ही रिपोर्ट करी थी। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास था, तो हमने कहा हम इस छोटे बच्चे में भी वो चीज़ हम करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि ये केस प्रॉबेबली फर्स्ट एंड यंगेस्ट चाइल्ड इन इंडिया and amongst the very few in the world with such a condition to undergo successful surgery at CK Birla Hospital पंजाबी बाग में। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये ओपन सर्जरी में ऐसा ऑपरेशन होता है इस बीमारी के लिए। बच्चे के पूरे पेट में इतना बड़ा सा स्टार आता है, और इस बच्चे का अगर आप पेट देखें तो बहुत छोटे 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 5 मिलीमीटर्स 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे से हमने ऑपरेशन कर कट्स देके इस बच्चे का ऑपरेशन किया। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये एक टीम वर्क है, ये नहीं कि एक सर्जन ने आके एक सर्जरी कर दी। हम क्यों कॉन्फिडेंट थे इस सर्जरी को करने के लिए? वो इसलिए कि हमारे पास एक बहुत अच्छी एनेस्थीसिया टीम थी, हमारे पास एक बहुत अच्छी क्रिटिकल केयर टीम थी, हमारे पास बहुत अच्छी नर्सेज थी जो इस छोटे से बच्चे का ख्याल रख सकती थी, और हमारे पास अक्षत और विपुल जैसे लोग थे जो हमको हर लेवल पे सपोर्ट कर रहे थे। आप सही कह रहे हैं। पैनक्रेटाइटिस, अक्यूट पैनक्रेटाइटिस का कारण गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, पर ये जो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस बीमारी है ये अलग बीमारी है। इसके अंदर स्टोन्स गॉल ब्लैडर में नहीं बनते हैं, इसके अंदर स्टोन्स प्राइमरीली पैनक्रियाज की नली के अंदर बन जाते हैं। पूरी पैनक्रियाज को अगर देखें तो उसमें स्टोन्स भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो स्टोन्स के अलावा और कोई भी रीजन होता है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस? सो पैनक्रेटाइटिस का होने का कारण अडल्ट पेशेंट्स में जैसे मैंने बताया अल्कोहल का सेवन और स्मोकिंग। बच्चों के अंदर जो कॉमन कारण होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, कभी कभी पेट में चोट लग गई उसकी वजह से होते हैं, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, कभी कभी और मेटाबॉलिक कारण होते हैं। मेडिसिन्स भी होती है या अलोंग सर्जरी इसका? इसका जो ट्रीटमेंट क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का होता है वो बीमारी की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर अर्ली स्टेज में बीमारी है तो दवाइयों से भी इलाज हो सकता है, उससे थोड़ी सी बढ़ जाए तो कभी कभी एंडोस्कोपी से इलाज हो सकता है, बट जिस कंडीशन में ये बच्चा था इसके लिए सिर्फ एकमात्र इलाज सर्जरी। आपने स्पेशली देखते होंगे इस टाइम पे अगर बच्चों की बात करें जी, या और कितने इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं? तो मैं अगर आपको बताऊं कि अगर हम सर्जरी क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस बच्चों के अंदर बात करें तो बहुत रेयर है। बच्चों में ओपन सर्जरी बहुत रेयर है, और हम तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, वो तो अनहर्ड ऑफ टाइप की चीज है। कितने साल का ये बच्चा है? 7 साल। तो ये कॉस्टिंग क्या आपकी मतलब अगर कोई कराना चाहे जैसे कोई अभी आप बच्चे में कितना खर्चा है बच्चे? ये तो स्पेसिफिकली तो मैं अभी मुझको नहीं पता ऑफ हैंड, क्योंकि वो एक अलग फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, तो वो मुझको कुछ आइडिया तो होगा सर कितना खर्च हुआ? सर सर भविष्य में ये एकदम नॉर्मल रहेगा? बिल्कुल आपकी तरह बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। सर दिल्ली में आप जैसे कितने डॉक्टर होंगे जो इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलिस्ट हैं सर? देखिए सर, जो दिल्ली में बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और बट जो इस तरह का जो केस है वो आई वुड से कि इंडिया में पहला केस है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग सर्जरी है। तभी हम आप लोग सब हमारे साथ इस बीच में हैं कि ये सर्जरी बहुत रेयर सर्जरी है, और इंडिया में प्रोबेबली द फर्स्ट केस जो ऐसा हुआ। सर ये आप मतलब कैसे क्लेम कर सकते हैं, मतलब अगर कोई लिखे हम लोगों को? लेकिन हम सिर्फ जो रिपोर्टेड चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास अवेलेबल लिटरेचर, या तो किसी ने आर्टिकल लिखा है या किसी ने न्यूज़ में पब्लिश किया है, तो हमें इंफॉर्मेशन उसकी होती है। अगर नहीं है तो फिर हम उसी हिसाब से आपको बता सकते हैं। सर आपको कॉन्फिडेंस कैसे आया कि ठीक है मैं इस केस को कर सकता हूँ? अगर दिल्ली से इतने सारे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ये रिजेक्ट होके आया, तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ ठीक है कोई नहीं कर पा रहा है तो मैं ही इसका कर लूँगा? ऐसा क्या कॉन्फिडेंस आपके अंदर? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको जैसा बताया कि जो पैनक्रियास की सर्जरी होती है, एक वो अपने आप में चैलेंजिंग सर्जरी होती है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की। हमने पूरी दुनिया में लार्जेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट मोर देन 50 पेशेंट्स ऑफ अडल्ट पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की दुनिया की लार्जेस्ट सीरीज रिपोर्ट करी, वर्ल्ड लिटरेचर में पब्लिश भी हुई, वो सब अवेलेबल है। तो उसके साथ जो उस एक्सपीरियंस के साथ जब आप करते हो, मोर देन 50 पेशेंट्स में आप इतनी चैलेंजिंग सर्जरीज करते हो, और उसके बाद हमने इससे एक बड़े बच्चे में भी ऐसी सर्जरी करी, और उसके बाद हमने सोचा कि हम बच्चों में भी कर सकते हैं, तो इतने छोटे बच्चे में भी हम कर पाएंगे। तो एक ये लर्निंग कर्व, जो इतना हमने एक्सपीरियंस लिया 50-60 पेशेंट्स का, उसके बाद हमने इस बच्चे के ऊपर ये सर्जरी की।
ये पहला बच्चा है आपने जो इंडिया में इतना छोटा, इतना छोटा 7 साल का छोटा बच्चा इंडिया में पहली बार आपने रिसर्च किया। जी सर, शुरू के टाइम पे आपको कितना % मिस नजर आता था इस ऑपरेशन? देखिए, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक इतनी बड़ी सर्जरी को हम कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब हमें पता है कि हमारे हॉस्पिटल में हमें इतनी इक्विपमेंट्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स है। हमें ओटी के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट ओटी चाहिए, हमें एक विजन सिस्टम चाहिए जो कि बहुत, जिसमें सब चीज़ें अच्छे से दिखें। हमें एक टीम चाहिए ऑफ गुड एनेस्थेटिस्ट जो बच्चे को संभाल सकें। हमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए एक अच्छे आईसीयू की ज़रूरत है। हमें एक अच्छे नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है। तो इस हॉस्पिटल में वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो हमको ये कॉन्फिडेंस देती है कि हम इतनी बड़ी सर्जरीज यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चे के साथ साथ अपनी टीम में कॉन्फिडेंस था आपके शुरू में? बिल्कुल 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 टीम में कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। Thank you. हॉस्पिटलों में गए थे इसका कारण तो किसी ने हमें मतलब हिम्मत नहीं दी थी। कहाँ से लेकर बच्चे को? ये हम देहरादून भी गए थे, हम मेरठ भी गए थे, हम दिल्ली में है कौन सा फोर्टिस हॉस्पिटल, वहाँ भी कई बार लेकर जा रहे थे, मना कर दिया था। तो इसलिए हम ढूंढते ढांढते डॉक्टरों के पास आए, उन्होंने देखते ही कह दिया कि हम सर्जरी कर देंगे। हम बहुत रो रहे थे, हमें छोटा बच्चा था, कमजोर था, कई डॉक्टरों ने मना कर दिया। इसलिए हम पे ये 2 ही बच्चे हैं और ऑपरेशन से हो गए थे, तो इसलिए अब हमारा और औलाद भी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम बहुत परेशान थे, हमारा बच्चा बहुत परेशान था, इसको देख कर हम बहुत परेशान थे। इसलिए हम डॉक्टर के पास आए, उन्होंने कह दिया हमारी हालत हम ऑपरेशन कर देंगे। जब आप घर से चली थी क्या उम्मीद थी आपको मैम कि कई हॉस्पिटल मना कर दे, उम्मीद टूट चुकी थी आपकी? उम्मीद टूट चुकी थी। अच्छा, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद टूट चुकी थी, इसलिए तो जैसे हमारी उम्मीद टूटी है, हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोले हम इनका ऑपरेशन कर देंगे, हम मदद जरूर करेंगे। हमें डॉक्टर अभी जावेद ने हिम्मत दी, मैं जान में जान आई हमारी, तो इसलिए हम 2 दिन तक आए थे, उन्होंने हमें बतलाया कि हम ऑपरेशन कर देंगे। इसलिए आज बच्चा आपके साथ है? आज बच्चा हमारे साथ है, हम बहुत खुश हैं, हमारा बच्चा हमारे साथ है, हमारा बच्चा ठीक है। क्या कहेंगे डॉक्टरों के लिए, क्या दुआ निकलती है आपकी? बहुत दुआ निकलती है। थैंक यू डॉक्टर। इसमें गया और क्योंकि ये छोटा था, इसका वजन बहुत कम था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो जब ये बच्चा हमारे पास आया तो हमने सोचा कि हम इस बच्चे की मदद करें। और कन्वेंशनली ये जो ऑपरेशन किया जाता है वो एक पेट काट के करा जाता है। हम चाहते थे कि इस छोटे बच्चे को हम बिल्कुल कष्ट ना दें, उसके लिए कुछ ऐसा करें जो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। तो हमने ये ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी टेक्निक से किया, और ये जो लैप्रोस्कोपी टेक्निक से ऑपरेशन किया ये दुनिया में बहुत कम बच्चों में ऐसा कभी हुआ है। इंडिया में तो प्रॉब्ली इतनी छोटी एज में माइल्डर स्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्ली ये फर्स्ट बच्चा है जिसका इतना बड़ा ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी। पता कैसे लगता है? देखिए कोई जानकारी जी, जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस जो अडल्ट पेशेंट्स होते हैं, एक बड़ा इंसान होता है तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर होता है अल्कोहल और स्मोकिंग। जो छोटे बच्चे होते हैं ऑब्वियसली उसमें अल्कोहल और स्मोकिंग तो नहीं होगी, तो छोटे बच्चों में जो कारण होता है वो कभी कभी जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जैसे कि इस बच्चे में थी। कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस की वजह से क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो जाता है, कभी कभी पेट में चोट लगने की वजह से हो जाता है, और कभी कभी कुछ मेटाबॉलिक कारण होते हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो जाती है। पता तब चलता है जब बच्चे को सीवियर पेन होता है और पेट की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, उसमें दिख जाता है कि बच्चे को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। बच्चा बहुत खुश है, अपनी मम्मी पापा के साथ है, उसकी तकलीफ बहुत बेहतर हो गई है और खूब मज़े कर रहा है।